Yes, good afternoon to everyone. Today, the remaining instructions we'll see, and I think today we'll be winding up all the instructions because instruction sets are very huge. Okay, and the most important instructions we have already I'm explaining you. So which are the instructions which will be left? You will have to do as an assignment. Okay. The assignment questions which I will be giving, I think most probably today I will be giving. So these assignment questions will also have some of the instructions which I haven't taken in the class, but you can do by yourself. Okay. Already I have shared with you ebooks as well as the PPTs. So please go through the PPTs and the ebooks and please try to understand by yourself. And if there are some instructions which you do not understand, let me know so that I can take in some other lecture. Okay. But today I think is the last lecture where I will be completing all my instructions, the important instructions. Okay. So let me share my screen. So these instructions will be well understood if you have understood with the concept of registers, data segment, code segment, SI, DI. Okay. So what are the functions of these registers? So when you understood these concepts clearly, you will be able to understand the instructions also. Okay. So you should know what are the instructions are doing and what are the specific registers which are enrolled in that. My screen is visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So I think the last I have talked about the move SB and SW. ये हो गया था ना? Yes, ये हो गया था? हाँ सर, ये हो गया था. Yes. Now please come back to the next instruction under the string manipulation instruction, that is compare string. Compare string. Okay. So when you talk about the compare string here, actually what do you mean by compare? What do you mean by compare? So please try to understand. I am comparing means actually I am subtracting something from some else. Okay. I am subtracting something from some other number. So who is getting subtracted from what? Who is getting subtracted from the what? That thing we have to understand. Okay. So as far as the compare instructions are concerned, we have to understand there are two instructions for that. So you have compare SB. This is the one instruction I have, and compare SW. Okay. It is not only CMP, but it is CMPS, and it is not only CMPS, but it is CMPSB or CMPSW. So as far as I'm talking about the byte, or if I'm talking about the word. Okay. Now try to understand who is going to subtract whom. Who is going to subtract whom. So now as far as if I'm talking about the byte, okay, a 1 byte of a string data in extra segment is subtracted from 1 byte of a string data in the data segment and in the data segment. So I can say ds minus es. So I can say ds minus es. Okay. So that means your extra segment is getting subtracted from ds. Okay. Now please try to, कभी कभी confusion होता है कौन किसको subtract कर रहा है, because there are many instructions will follow and that will create confusion to you. So here your es, that is extra segment, is subtracted from the data segment. Okay. Now here, and the result is used to modify the flag. Now actually वो subtraction क्या है, वो result क्या है, I am not interested in that. जो भी result होता है उसका जो भी flags पे असर होता है. So actually what is this compare doing? Compare is subtracting data extra segment from the data segment, and result is not generated. Whatever the result will be generated, uska modification or that thing is getting reflected in the that thing will be reflected in the status flag. That thing will be reflected in the status flag. So the result will only modify the flag. Result will only modify the flags. कौन से फ्लैग? कैरी फ्लैग हो सकता है, जीरो फ्लैग हो सकता है, पैरिटी फ्लैग हो सकता है, ऑक्सिलरी कैरी हो सकता है. सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो ऑक्सिलरी कैरी का
auxiliary carry we won't talk. Okay, we'll talk about the carry flag. We'll talk about the carry flag. So the result will only modify the flag, and the result will not be stored anywhere. Result will not be stored anywhere. So you have understood that I am dealing with the data segment and I am dealing with the extra segment. So as far as the data segment is concerned, please see here MA. यहाँ पे MAD ने लिखा है बिकॉज मैंने पहले ही बताया था मेमोरी एड्रेस डी ने लिखा, तो बाय डिफॉल्ट वो समझ में आता कि मैं डेटा सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है MAE, तो दैट इज अ मेमोरी एक्सेस फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट। सो दैट नंबर विच आर गोइंग टू बी कंपेयर्ड, वो कहाँ पे रहेगा, वो नंबर कहाँ पे रहेंगे, वो रहेगा अगर डेटा सेगमेंट है तो वो सोर्स इंडेक्स में रहेगा, और एक्स्ट्रा सेगमेंट की है वो DI में रहेगा। तो आप जो कंपेयर करने वाले हो, वो आप जो कंपेयर करने वाले हो, ओके, दैट इज DS माइनस ES। तो ES जो एक्स्ट्रा सेगमेंट के जो मैं बात करूंगा, वो मेमोरी लोकेशन में जो डेटा रहेगा वो कौन बताएगा, वो बताएगा DI। तो इसके मैं नीचे लिखता हूं DI। मैं फिर से बताऊंगा व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन यू। So this is your destination index, DI, destination index। और ये DS जो है डेटा सेगमेंट में जो मेमोरी लोकेशन है, वो कौन सा मेमोरी लोकेशन कौन बताएगा, वो बताएगा आपका SI, वो बताएगा आपका SI। सो दैट इज सोर्स इंडेक्स, दैट इज सोर्स इंडेक्स। ओके, तो जो मैं कंपेयर करना चाहता हूं एक्स्ट्रा सेगमेंट लोकेशन में जो डेटा है और डेटा सेगमेंट लोकेशन में जो डेटा है, वो दोनों कंपेयर करना, इसका मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है दैट इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटा सेगमेंट में जो मेमोरी लोकेशन है उसमें जो डेटा है उससे वो सेपरेट होगा। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में मेमोरी लोकेशन कौन बताएगा, वो बताएगा DI। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, extra segment into decimal number 16 plus DI। So can I say this everything will give me the 20 bit of memory address location? Yes, as far as memory address of extra segment is concerned। और ऊपर वाला देखो, so can I say this calculation will give me 20 bit of memory address in the data segment? Yes। तो आपको डेटा सेगमेंट मिल गया मेमोरी लोकेशन का, आपको एक्स्ट्रा सेगमेंट में वो मेमोरी लोकेशन मिल गया, तो दोनों मेमोरी लोकेशन मिल गया, तो आप सब्ट्रैक्ट करो और जो भी रिजल्ट आता है वो कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिजल्ट आता है वो सिर्फ आपके फ्लैग्स को मॉडिफाई करता है, वो आपके फ्लैग्स को मॉडिफाई करता है, वो आपके फ्लैग्स को मॉडिफाई करता है। तो अब देखो क्या हो गया, अगर नाउ सी हियर फर्स्ट, अभी मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं ना, तो यू विल हैव थ्री कंडीशन, ईदर इट विल बी ग्रेटर MAE ग्रेटर देन MAE, या इसका मतलब जो डेटा सेगमेंट में जो मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है वो बड़ा हो सकता है किससे, जो डेटा मेमोरी लोकेशन एक्स्ट्रा सेगमेंट में है उससे अगर बड़ा होता है तो क्या हो सकता है, कैरी फ्लैग जो रिजल्ट होगा वो क्या मॉडिफाई करेगा, कैरी फ्लैग को 0 बना देगा, जीरो फ्लैग को 0 बना देगा और साइन फ्लैग को 0 बना देगा। लेकिन अगर वो लेस देन है, अगर वो लेस देन है तो कैरी फ्लैग को 1 बना देगा, जीरो फ्लैग को 0 बना देगा और साइन फ्लैग को 1 बना देगा। आपको अगर करना है ये घर पे बैठ के आराम से करो, एक कोई भी नंबर लो और अगर ग्रेटर देन है तो ये सब चेंजेस दिखने चाहिए फ्लैग्स में, अगर वो लेस है तो ये सब चेंजेस दिखने चाहिए फ्लैग्स में, अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो कैरी फ्लैग 0, जीरो फ्लैग 1, साइन फ्लैग 0। अब इक्वल इसका मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर 0 आएगा ना, तो ये देखो ना जीरो फ्लैग 1 है ना, जीरो फ्लैग 1 कब होता है, जब आंसर 0 है, और अगर नॉन जीरो आंसर है तो वो 0 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में देखो जीरो फ्लैग 0 है, और एक ही कंडीशन में जब दोनों इक्वल होता है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो सब्ट्रैक्शन 0 आने वाला है, तो जीरो फ्लैग आपका 1। तो याद में रखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है कौन किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी बात है एक्स्ट्रा सेगमेंट का लोकेशन कैसे बताए, कौन बताएगा, वो बताएगा DI। मैं यहाँ पे कुछ भी ले नहीं सकता हूँ, मेरे मन पे जो भी है मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, मुझे DI ही लेना पड़ेगा। तो आपको मेमोरी लोकेशन DI में ही रखना पड़ेगा,
और यहाँ पे दूसरी बात, डेटा सेगमेंट वो कौन बताएगा, वो आपका एसआई बताएगा। यहाँ पे भी मैं कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, मुझे एसआई लेना पड़ेगा, तो वो मेमोरी लोकेशन आपको एसआई में डालना पड़ेगा, और वो फिर 20 बिट का कैलकुलेशन ऐसे होंगे, फिर आपको मेमोरी लोकेशन मिलेगा, और फिर एक्चुअली कंपैरिजन होगा। इसका मतलब वो इधर ग्रेटर देन अगर रहेगा, या फिर लेस देन रहेगा, या फिर इक्वल रहेगा, वो हिसाब से ये फ्लैग्स मॉडिफाई होंगे, ये फ्लैग्स मॉडिफाई होंगे। ये हो गया बाइट के बारे में बात। अगर मैं वर्ड के बारे में बात करूंगा, सब वही चलने वाला है, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। देखो, di+1, di+1 दैट इज, हाँ यहाँ पे, हाँ और एक बात है, द इम्पोर्टेंट थिंग मैं जो बोलना भूल गया, फॉर बाइट, फॉर कंपेयर एसबी, फॉर कंपेयर एसबी, ओके, जब आपका कंपैरिजन होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन फ्लैग, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन फ्लैग, okay, your contents of di and si are automatically incremented or decremented, okay। अगर डायरेक्शन फ्लैग 0 है तो आपका di+1 होगा और आपका si+1 होगा, और अगर df = 1 है तो di आपका -1 होगा और si आपका -1 होगा। So always remember, your directional flag will give you the indication whether di and si will be automatically incremented by 1 या फिर automatically decremented by 1. So that depends upon direction flag, okay। And for word also, if it is df = 0, it will be incremented by 2. Already I have explained you in the previous instructions also, as well as your si will be also incremented by 2. But when df = 1, in that case di will be decremented by 2 and si will be decremented by 2. I hope you have understood this. I hope you have understood this. If you have Yes, any sir. questions, if you have any questions, you ask me. This is, I am going very detailed, very specific. टाइम लगा तो भी चलता है, लेकिन आपके दिमाग में जाना चाहिए। तो आपके दिमाग में जब जाएगा जब आपको सब रजिस्टर्स के इंपॉर्टेंस पता है, आपको पता है एमए क्या होता है, आपको पता है एमई क्या होता है, आपको पता है 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है। इफ यू अंडरस्टूड दिस, then you will be understanding this all the instructions, okay। if you have understood this, we'll move further। yes, now compare to this now, क्या सर 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 एक डाउट हाँ है हाँ सर। वो जो डायरेक्शनल फ्लैग है सर, वो हाँ, मुझे नहीं समझा सर, वो कैसे चेंज होता है, मतलब 1 0 या 1 कैसे हो जाए सर? वो एक बार फिर से। डायरेक्शन फ्लैग अपने हाथ में नहीं होता है। कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसके हिसाब से डायरेक्शन फ्लैग चेंज होता है, 1 या 0 होता है, और वो हिसाब से आपका डी और एस आई चेंज होता है। डायरेक्शन फ्लैग अपने हाथ में नहीं है। जैसे कैरी फ्लैग अपने हाथ में है क्या? खुद से आप 1 और 0 कर सकते हो क्या? नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन जो ऑपरेशन होंगे वो हिसाब से आपके कैरी फ्लैग चेंज होंगे, लेकिन डायरेक्शन फ्लैग भी अपने हाथ में नहीं है। हम जो कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं उसके पहले वो हिसाब से डायरेक्शन फ्लैग कुछ चेंज होता है, ओके। देन डिपेंडिंग अपॉन दैट द एस आई एंड डी आई विल बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, ओके। दैट डिपेंडिंग अपॉन दैट डायरेक्शन फ्लैग। सो डीएफ अगर 0 रहेगा तो यू नो दैट इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, ओके, फॉर 1 बाइट, और ओके सर। फॉर अ वर्ड इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2, डायरेक्शन फ्लैग, ओके। ओके ये सर। और डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन फ्लैग के लिए ना हम जब आगे और पढ़ेंगे ना फॉर कंसेक्यूटिव लेक्चर्स, हम आगे की जब देखेंगे ना दैट टाइम इट विल बी मोर क्लियर। तो वो टाइम पे मैं सिखाऊंगा। सिर्फ आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि डायरेक्शन फ्लैग के हिसाब से आपको डीआर इंक्रीमेंट विल बी 2 और इट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2 फॉर अ वर्ड, और +1 फॉर अ बाइट, और -1 फॉर अ बाइट, ओके। सो प्लीज रिमेंबर फॉर दैट थिंग ओनली। एक काम करो, ओके ठीक है, डू नॉट राइट एनीथिंग बिकॉज एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। Now come to the second one, that is SCA. SCA stands for scan. Okay. अब स्कैन का मतलब भी होता है कंपेयर। स्कैन का मतलब ये कंपेयर होता है। जो हमने पहले वाले इंस्ट्रक्शन से लिया था वो कंपेयर कर रहा था। अभी स्कैन भी कंपेयर कर रहा है, तो दोनों में क्या फर्क है? एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ चला साहब, कॉल करो तो। So yes, come to the next instruction, that is a scan.
तो कंपेयर भी कंपेयरिंग कर रहा था, ये स्कैन भी कंपेयर कर रहा है. सो द कंपेयर कैन बी बिटवीन द बाइट, स्ट्रिंग बाइट, और इट कैन बी अ वर्ड. लेकिन देखो विथ एक्यूमुलेटर, दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस. ओके, दैट इज अ डिफरेंस. अभी फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कौन किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो एस सी एस बी, एस सी एस डब्ल्यू, string byte, string word. SCA is scan, that is nothing but compare. But who is, what is getting compared with who, और या फिर कौन किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है. I am going to write it down here. That is SCA, SCA, SB. So one byte of string data in extra segment is subtracted from the content of AL. So that is understood. मैं लिख सकता हूँ directly AL minus AL माइनस एक्स्ट्रा सेगमेंट. वहां पे क्या लिखा था मैंने, इसलिए मैं बता रहा था कंफ्यूजन होता है. वहां पे मैंने लिखा था ds माइनस ईएस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ al माइनस ईएस, और बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है. देखो मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट का कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा सेगमेंट इनटू डेसिमल वैल्यू 16 प्लस डी आई. तो मैं बोल सकता हूँ ईएस का लोकेशन कौन बताएगा, वो आप बोल सकते हो कि सर वो बताएगा डी आई, दैट इज डेस्टिनेशन इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स बताएगा. ओके, और जो भी सब्ट्रैक्शन होगा, जो भी सब्ट्रैक्शन होगा वो फ्लैग्स को मॉडिफाई करेगा. सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इसलिए देखो नीचे में क्या लिखा, एल माइनस एम ए ई, इसका जो भी रिजल्ट है दैट इज यूज टू मॉडिफाई द फ्लैग. तो वही तीन कंडीशन, एल ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू एम ए ई. अगर ग्रेटर देन है तो ये सब चीजें होने वाली है, अगर लेस देन है तो ये सब चीजें होने वाली है, अगर इक्वल है तो ये सब चीजें होने वाली है. वही फिर से बात, डायरेक्शन फ्लैग 0 है तो डी आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, अगर डायरेक्शन फ्लैग 1 है तो डी आई विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1. ओके, एंड दिस इज फॉर whom, दिस इज फॉर MAE, that is for word, this is for word. Okay, फिर word में क्या चेंज होता है, if df is equals to 0, di will be incremented by 2, and if df is equals to 1, di will be decremented by 2. बस बाकी सब सेम, बाकी सब सेम. सिर्फ यहाँ पे रखना वर्ड है, वर्ड है इसका मतलब दो मेमोरी लोकेशन, इसलिए देखो MAE और MAEI यहाँ पे. लेकिन तो भी मैं एक और एक बात बताता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है AX माइनस ES, AX माइनस ES. ओके, AX माइनस ES. और जो भी मोर स्पेसिफिक आपको पता है AX क्या है, दैट इज नथिंग बट AL और AH. अभी देखो अगर AX इज ग्रेटर देन, AX इज 16 बिट एंड आपका lower 8 bit will be in the MAE and the higher 8 bit will be in MAE plus 1. So can I say MAE will be compared with AH, MAE will be compared with AL, and MAE plus 1 will be compared with AH, because it is, I am talking about word, I am talking about word. ओके, बाकी भी वही चीजें हैं, बाकी भी वही चीजें. सिर्फ यहाँ पे याद रखना AX माइनस ES, और ES का कौन बताता है, आपका DI बताता है, आपका DI बताता है. ओके, और यहाँ पे याद रखना लोअर 8 बिट इन AL एंड हायर 8 बिट इन AH. बस ये याद रखना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. शैल वी प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. Yes. So this is the all about the SCAS. अब नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है. हाँ, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लोड और स्टोर. ये हमेशा कंफ्यूजन होता है. ओके, लोड और स्टोर में हमेशा, एक मिनट, यस, लोड और स्टोर में हमेशा कंफ्यूजन होता है. तो मैं भी जो भी सिखाऊंगा ये याद बराबर सुनो मैं क्या बता रहा हूँ. ओके, लोडिंग एंड स्टोरिंग, लोडिंग इन व्हाट एंड स्टोरिंग इन व्हाट. ओके, ये देखो क्या लिखा है,
लोड स्ट्रिंग बाइट, अभी यहाँ पे वही है, बाइट या फिर वर्ड, बाइट या फिर वर्ड, लोड स्ट्रिंग बाइट इनटू एल, और लोड और स्ट्रिंग वर्ड इनटू एएक्स। तो लोड एसबी है, तो एक्चुअली मैं ए एल में स्टोर लोड कर रहा हूं, और लोड एसबी है तो मैं एएक्स में लोड कर रहा हूं। यहाँ पे स्टोर मत बोलो, यहाँ पे लोडिंग बोलो, ताकि आपको पता चलेगा लोड इज एसोसिएटेड विथ एल और ax. If it is a byte associated, I am loading in al. If it is a word, I am loading in ax. लेकिन एक्चुअली क्या लोड, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोड? लोड क्या कर रहा है? लिसन केयरफुली। 1 byte of a string data stored in data segment is copied into the al register. Is copied into the al register. ये इंपॉर्टेंट है, मुझे कॉपी करना है, मुझे मूव नहीं, देखो जब मैं मूव करता हूँ ना, जहां से मैं मूव कर रहा हूँ वो जगह खाली हो जाती है, लेकिन अगर मैं कॉपी करता हूँ ना, तो वो जगह वैसी की वैसी रहती है, और हम सिर्फ कॉपी करते। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉपी, कॉपी। मूव और कॉपी में डिफरेंस है। मूव कर रहा हूँ मतलब मैं वहां से लेके उधर, दिस इज लाइक कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। कट में जब करता हूँ तो वहां पे कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मुझे जहाँ पे कट एंड पेस्ट करना है तो वहां पे रहेगा। और कॉपी में करता हूँ तो जहां से कॉपी कर रहा हूँ वहां पे भी रहता है, और जहाँ पे मैं कॉपी करना चाहता हूँ वहां पे भी रहता है। ये क्या है? ये है कट एंड पेस्ट, सॉरी ये है कॉपी एंड पेस्ट। दिस इज कॉपी एंड पेस्ट। ओके, अब कहाँ से कब मुझे कॉपी करना है? सी है आपका डेटा सेगमेंट में जो कुछ मेमोरी लोकेशन है, जो कौन बता रहा है? ऐसा बता रहा है। तुम यहाँ पे याद दे रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट में से कॉपी हो रहा है एएल में, डेटा सेगमेंट से कॉपी हो रहा है एएल में। ओके, यहाँ पे भी वही लिखता हूं मैं, डेटा सेगमेंट से कॉपी कर रहा हूं मैं एएक्स में, एएक्स में। तो क्वेश्चन आएगा डेटा सेगमेंट कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा एसआई से, एसआई, फिर वही 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन। तो वो आपको बताएगा एमए का लोकेशन। एमए का लोकेशन मिल गया तो एमए का वो लोकेशन में जो डेटा है दैट इज कॉपीड इनटू एएल, दैट इज कॉपीड इनटू एएल। तो याद रखना लोड इंस्ट्रक्शन एएल के साथ ही एसोसिएटेड है। आप बोलेंगे सर मुझे बीएल में करना है, नहीं, तो पहले एएल में करो और बाद में मूव बीएल एएल करो। आप बोलेंगे सर मुझे बीएल में डालना है, तो पहले मूव करो एएल में। तो लोड एस बी इज द सिंपल इंस्ट्रक्शन विच विल लोड द डेटा और विच विल कॉपी द डेटा फ्रॉम द डेटा सेगमेंट। और डेटा सेगमेंट का लोकेशन कौन बताएगा? वो ऐसा बताएगा, वो ऐसा बताएगा। और फिर बाकी की चीजें वही है। डायरेक्शन फ्लैग अगर 0 है तो ऐसा आपका दो एक बार इंक्रीमेंट होगा। अगर डायरेक्शन फ्लैग आपका 1 है तो आपका ऐसा विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, और ये अगर वर्ड है, अगर वर्ड है, ओके, नाउ वर्ड है तो आपको पता है एएक्स। ओके, तो मेमोरी एड्रेस जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन के लिए ये है। और आपका एएक्स में क्या जाएगा? आपका एएक्स में एमए, तो मैं बोल सकता हूँ एमए विल गो इनटू एएल, MA plus 1 will go into AX, will go to AH, because AL plus AH equal to AX. So lower bit will go into AL and higher bit will go into AH. और वही फिर से वही बात, DF अगर डेटा your direction flag is 0, your SI will be incremented by 2, and if your DIF is equals to 1, it will be decremented by 2. That is the meaning. I hope you have understood. Shall we proceed? Yes, sir. Yes. Come to the store. यहाँ पे भी वही चीजें हो रही है, यहाँ पे भी मुझे कॉपी ही करना है, लेकिन क्या हो रहा है, किधर कॉपी हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिसन केयरफुली। 1 byte of a string data stored in data segment, stored in data segment is copied, sorry, I am talking, yes, STOSB ना, yes, STOSB. The content of AL register is stored as 1 byte of string data in the extra segment.
इन द एक्स्ट्रा सेगमेंट, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में कॉपी हो रहा है, तो मैं कुछ लिखने की जरूरत नहीं, या फिर समझ में आ रहा है। एएल का जो भी कंटेंट है दैट इज कॉपीड इनटू एमएई एक्स्ट्रा सेगमेंट लोकेशन में, और एक्स्ट्रा सेगमेंट लोकेशन कौन बताएगा, वो बताएगा आपका डीआई। बस डीआई आपको मिला, 20 बिट ऑफ फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करो, वो फिर मेमोरी लोकेशन पता चलेगा, एएल का डेटा कॉपी कर दो, एएल का डेटा कॉपी कर दो, एएल का डेटा कॉपी कर दो। ओके, वही फिर से वही बात, अगर डीएफ 0 है आपका डीआई विल बी +1 एंड डीएफ इज इक्वल टू 1, इट विल बी -1। ये हो गया बाइट के लिए। वही स्टोर के लिए वही वर्ड के लिए क्या होगा, वही वर्ड के लिए क्या होगा आपका, एक मिनट, हाँ क्या होगा आपका डीआई। ओके, आपका डीआई will give you the memory address location of extra segment। ओके, और क्या होगा आपका AX का कंटेंट, याद रखना मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो AX आएगा, AH और AL आएगा, तो AX का कंटेंट will go into this, तो कहने से AL का कंटेंट will go into MAE and AH का कंटेंट will go into MAE+1, MAE+1। ओके, so do not be confused, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट है लेकिन कौन किधर से जा रहा है, कॉपी किधर से हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, एंड दैट विल क्रिएट यू द प्रॉब्लम। सो लोड एंड स्टोर, वी आर ओनली कॉपिंग, वी आर नॉट कट पेस्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट कॉपी। ओके, लेकिन कहाँ से कहाँ कॉपी हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वही वर्ड की बात है, वर्ड की बात आती है तो डायरेक्शन फ्लैग में +2, और अगर 1 है तो इट इज -2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। शैल वी प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. Yes, we'll go to the next one now. Now processor control instructions। okay, processor control instructions वो हो गया अभी अपना, 4 इंस्ट्रक्शंस हो गए, पहले अर्थमेटिक, सेकंड लॉजिकल, थर्ड वाला स्ट्रिंग, और फोर्थ वाला दिस वन, इसके अभी जो हमने लिया था कंट्रोल ट्रांसफर वाला, ये वाले, हाँ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाला। okay, string manipulation, so we have done with the fourth, now this is the fifth one। This is a processor control instruction, this is a processor control instruction, these are the instructions which are also important, control transfer। यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि आपका you can do it by yourself, मैं just 2-3 बताता हूँ। अभी मैंने जो बताया था आपको कैरी फ्लैग, ये सब जो होता है, अब तक मैंने आपको ये बताया था ऑपरेशन के हिसाब से आपके कैरी फ्लैग मॉडिफाई होते हैं, ऑपरेशन के हिसाब से आपके कैरी फ्लैग मॉडिफाई होते हैं, लेकिन प्रोसेसर भी कुछ कैरी फ्लैग को मॉडिफाई कर सकता है। प्रोसेसर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दैट इज द डिस्क्रिशनरी कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसर 8086। तो मुझे विदाउट एनी ऑपरेशन मुझे कैरी फ्लैग को चेंज करना है, मैं कर सकता हूँ। नाउ दिस इज द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट यस वी कैन डू इट बाय आवरसेल्फ, वी कैन डू इट बाय आवरसेल्फ। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे कैरी फ्लैग को 1 करना है, ये इंस्ट्रक्शन यूज करो, मुझे कैरी फ्लैग को 0 करना है, ये इंस्ट्रक्शन यूज करो, मुझे कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट करना है, CMC यूज करो, मुझे डायरेक्शन फ्लैग को 1 करना है, उसको ये इंस्ट्रक्शन यूज करो, मुझे डायरेक्शन फ्लैग को 0 करना है, ये इंस्ट्रक्शन यूज करो, मुझे इंटरप्ट फ्लैग को 1 करना है, ये इंस्ट्रक्शन यूज करो, इंस्ट्रक्शन फ्लैग को 0 करना है, ये इंस्ट्रक्शन यूज करो। अगर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं करना है, NOP, ये भी हम कभी कभी यूज करते हैं, नो ऑपरेशन। ओके, so this is not so important, but there is more installation we'll see in the later classes। अगर halt after interrupt is set, okay, अगर मुझे रुकना है after the interrupt is set, use this instruction। wait for test pin in this one। मुझे अगर escape करना है, मुझे अगर लॉक बस ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन हमने देखा है, लॉक करना, ये हमने पहले भी देखा है। ओके, सो दिस इंस्ट्रक्शन आई विल बी गिविंग यू एज एन असाइनमेंट, दिस इंस्ट्रक्शन halt आई विल बी गिविंग एन असाइनमेंट, ये वेट भी हमने देखा है, ये भी आई विल बी गिविंग एज एन असाइनमेंट। So these are the processor control instructions, very straightforward, nothing, no need to explain this one in detail। okay, so this is about the control, but there are again more few are there। so processor control instructions, we have seen this। now control transfer, now this is important, control transfer instructions।
control transfer instructions, these are important, so I want everyone to pay attention. This is important. अभी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, कान खोल के सुनो. वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. कंट्रोल ट्रांसफर का मतलब होता है आपका भी जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी आप एग्जीक्यूट करते हो, ओके, वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन यू आर एग्जीक्यूटिंग, ओके, द इंस्ट्रक्शन विल गो फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. आपको पता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना जो है वो आपको दिखाता है, फिर वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वो नेक्स्ट वाला बताता है. तो यू आर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन. दैट इज the program instructions are executed one after the other. Okay, so this is a normally a program is executed sequentially. So can I comment, normally the programs are executed sequentially का मतलब होता है the program instructions are executed one after the other. Okay, लेकिन now remember, when a branch instruction is encountered, अभी कभी ब्रांच इंस्ट्रक्शन आ सकता है, तो कभी मुझे जंप करना पड़ता है, कुछ जंप कंडीशनल जंप्स होते हैं, कुछ अनकंडीशनल जंप होते हैं. तो डोंट यू थिंक दैट मैं नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो कर रहा हूँ, आई विल स्टॉप दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन एंड आई विल जंप टू द इंस्ट्रक्शन जो मुझे परफॉर्म करना है. यस, दैट इज द केस. So when a branch instruction is encountered, the program execution control is transferred to the specified destination or target instruction. Okay, now the transfer of the program execution control is done either by changing the content of IP. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, then you will understand. Okay, तो आपको पता है आपका जो IP होता है ना, आपका जो IP कहाँ पे होता है, मुझे पहले बताओ. IP आपका कहाँ होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहाँ पे होता है, आर्किटेक्चर में. BIU. हाँ, यस, इट इज इन द BIU. और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कितने बिट का होता है ये भी मुझे बताओ. So 16 bit. यस, इट इज 16 बिट. ओके, तो मैंने आपको अभी बताया था कि नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का होता है वो सिक्वेंशियली वन बाय वन. ओके, वन बाय वन का मतलब होता है सपोज 0 एक काम करता हूं मैं, I will explain you this on the Jamboard. Yes, see here. Now you know that you have an instruction pointer, and that instruction pointer will always point to the next instruction which is going to be executed. Now this is suppose your normal एक काम करता हूँ. Suppose you have this first instruction, second instruction, ये मैं ऑलरेडी दिया आपका, दिस इज नॉट न्यू, लेकिन आपको ये मुझे समझाना पड़ेगा. तो 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन, सपोज ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है 0 0 0 0 पे, और सपोज ये इंस्ट्रक्शन ने 2 बाइट खाई, तो वो नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 0. एक मिनट, so if you have these instructions 1 2 3 4 5, suppose
Yes. There is some problem in this. Okay. Now see, if you have these instructions written, so if I'm having these instructions 1, 2, 3, 4, these are sequential instructions. And first instruction is suppose at the memory address 0, 0. It is not coming. ठीक है, मैं उसी पे जाता हूँ पीपीटी पे. Yes. So if it is 0, 0, 0, तो 0, 0, 0, 0 पहला वाला. अगर पहले इंस्ट्रक्शन में 2 बाइट खाई तो दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा एट द मेमोरी एड्रेस 0, 0, 0, 2. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. ओके, इसने भी 2 बाइट खा ली, ये इंस्ट्रक्शन ने भी 2 बाइट खा ली. तीसरा इंस्ट्रक्शन आएगा एट 0, 0, 0 एंड 4. तो मैंने बताया था इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है. ये इंस्ट्रक्शन सपोज सबसे पहले आपको एग्जीक्यूट करना है, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में ये रहेगा. आपको पता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 16 बिट का है, तो 0, 0, 0, 0 इज नथिंग बट ये 0 का 4 0, ये 0 का 4 0, ये 0 का 4 0 और ये 0 का 4 0. तो टोटल हो गए 16. सॉरी, टोटल हो गए, हाँ यस 16. तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में अगर 0, 0, तो इसका मतलब ये मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा पहले. तो ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा. ये एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत आईपी में क्या जाता है, ये जाता है. तो प्रोग्राम को पता चलता है कि मुझे यही लाइन पे इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है. फिर से ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से तुरंत आईपी में कौन सा एड्रेस जाता है, ये जाता है. तो प्रोग्राम को पता चलता है कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है. अभी सपोज ये पहला और सेकंड पे सपोज देयर इज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन. फॉर सेकंड इंस्ट्रक्शन देयर इज अ ब्रांच. तो ब्रांच अगर है तो मुझे अभी जंप करना है. मुझे अगर जंप करना है तो I mean to say that the transfer of program execution control is done either by changing the content of IP. तो ये IP का जो कंटेंट है ना, ये जो IP का जो कंटेंट है ना, ये मुझे चेंज करना पड़ेगा. सपोज यहाँ पे कुछ तो भी जंप है और मुझे यहाँ से जंप करना है, सपोज यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2-3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने, 1, 2, 3, 4. और इसका भी मेमोरी एड्रेस कुछ तो भी है. सपोज इसका मेमोरी एड्रेस है x. आई एम गिविंग एन एग्जांपल, x. अभी जगह नहीं इसलिए मैं सिर्फ 2 ही x लिखता हूँ. तो या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो 002 था पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा सपोज एक्सेस आएगा. तो व्हाट आई मीन टू से दैट द कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर बिकॉज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. ओके, तो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कौन सा है. सपोज ये कॉल, ये दिख रहा है आपको, कॉल इंस्ट्रक्शन. द कॉल कैन बी, यू कैन मेंशन द, जहाँ पे जाना है दैट कैन बी मेंशन इन द रजिस्टर, that can be mentioned in the memory, or directly you can mention that address in the instruction itself. That means I am calling a subroutine. I am calling a subroutine. I am calling a subroutine. तो ये जो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे ये यहाँ पे जो प्रोग्राम दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सब रूटीन प्रोग्राम, SUB. अभी लिखने को प्रॉब्लम है इसलिए मैं SUB लिख रहा हूँ. इसको सब रूटीन बोलो, या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं. उसको बोलते हैं प्रोसीजर. दूसरा प्रोसीजर, मेन प्रोसीजर और दूसरा प्रोसीजर. ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PRO. प्रो स्टैंड फॉर प्रोसीजर. तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसको सब रूटीन प्रोग्राम बोल सकते हैं या फिर प्रोसीजर बोल सकते हैं. और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये होता है मेन प्रोग्राम. ये होता है मेन प्रोग्राम. सो आई एम एक्चुअली जंपिंग from
the main program to the subroutine program or the procedure. So jump करने के लिए either there are condition, there are the instructions. The instruction is can be call. The instruction can be call. Okay. अभी ये जो RET है ना, that is returning from the subroutine. ये आप पे जो instructions है ना, ये लास्ट वाला जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा RET. RET का मतलब होता है अभी ये इंस्ट्रक्शन सब मैंने एग्जीक्यूट की है, अभी मुझे मेन प्रोग्राम पे बाद जाना है, तो आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखना चाहिए सब रूटीन में. तो यहाँ पे देखो क्या है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन. तो आप कहाँ पे जाओगे, अभी अभी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है आपका, आपने कहाँ से जंप किया, यहाँ से, यानी 0002 से आपने जंप किया, और रिटर्न जब करोगे ना तो आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में अब क्या आएगा 0004. क्योंकि मुझे अभी ये सिर्फ 2 ही लाइन मैंने एग्जीक्यूट की, 2 लाइन के बाद मैंने जंप किया यहाँ पे सब रूटीन में. और जंप भी कैसे किया, आइदर बाय कॉल रजिस्टर और बाय कॉल मेमोरी या फिर कॉल डायरेक्टली एड्रेस. ये होने के बाद मैंने 1 2 3 4 एग्जीक्यूट किया. लास्ट में मुझे वहां पे RET होना चाहिए, RET रहेगा तभी मैं वापस जाऊंगा, सब रूटीन से मेन प्रोग्राम में जाऊंगा. तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे एक्चुअली कहाँ पे जाना है, तो वो एड्रेस है 0004. ओके. सो दीज आर द कॉल एंड रिटर्न. ये दोनों, एक मिनट, ये दो जो इंस्ट्रक्शंस है ना, कॉल एंड रिटर्न, they will go hand in hand. That means call and return instructions will work together. They will work together. और अगर jump instruction execute करना है तो that is a jump instruction. Okay. So for jump instruction that can be a unconditional jump or conditional jump. Okay. लेकिन वहां पे जाने के पहले I have to explain you something more about the call and return instruction. वो क्या है अभी समझो. ये आप, I hope you have understood this now. सब रूटीन क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, आईपी क्या होता है. ओके. अभी एक बात याद रखो, अगर मुझे सेम सेगमेंट में, अगर मुझे सेम सेगमेंट में ही जंप करना है, यानी क्या मतलब है, मेरा मेन प्रोग्राम और मेरा सब रूटीन प्रोग्राम सेम सेगमेंट में है. ओके. तो वो टाइम पे आप सिर्फ आईपी का कंटेंट चेंज होता है. यू कैन चेंज द आईपी कंटेंट. ओके. सो व्हेन द कंटेंट ऑफ आईपी अलोन इज मॉडिफाइड, द प्रोग्राम काउंटर ब्रांचेस टू अ न्यू मेमोरी लोकेशन. यहाँ पे न्यू मेमोरी लोकेशन क्या है, ये सब रूटीन वाला. एक मिनट, हाँ, ये सब रूटीन वाला, ये मेन, ये दिस इज अ न्यू प्रोग्राम ना आपका. ये वाला तो मेन प्रोग्राम था, ये आपका न्यू है, दैट इज सब रूटीन. तो मैंने क्या बोला, व्हेन द कंटेंट ऑफ आईपी अलोन इज मॉडिफाइड, द प्रोग्राम काउंटर ब्रांचेस टू अ न्यू मेमोरी, दैट इज अ सब रूटीन प्रोग्राम लोकेशन इन द सेम सेगमेंट. इसका मतलब मेन प्रोग्राम और सब रूटीन प्रोग्राम एक ही सेगमेंट में है. लेकिन अगर ऐसा कभी होता है कि आपका कंट्रोल ब्रांचेस टू अ न्यू मेमोरी लोकेशन इन अनदर मेमोरी सेगमेंट, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मेन प्रोग्राम आपका डेटा सेगमेंट में है और अगर आपका सब रूटीन प्रोग्राम वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में है, तब आईपी ही मॉडिफाई करके नहीं चलता. आईपी के साथ आपका, प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, आईपी के साथ आपका सीएस भी चेंज होता है. आपका सीएस कहाँ पे होता है, बीआईयू में होता है क्या ईयू में होता है? यस सर बीआईयू. यस बीआईयू में होता है. तो अभी मेरी बात सुनो, अगर आपका मेन प्रोग्राम और सब रूटीन प्रोग्राम एक ही मेमोरी सेगमेंट में है तो आप आईपी को मॉडिफाई करके वो काम चलता है. लेकिन आपका मेन प्रोग्राम और सब रूटीन प्रोग्राम दो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में है, तो आईपी के साथ सीएस का भी इंपॉर्टेंट काम है. Have you understood this till now? So that I can move further. Have you understood this? Yes sir. Yes. अभी देखो क्या हो रहा है. I will let you know
the remaining part now. Okay, एक minute. Yes. Okay, I will use this space for writing. Okay, this is nowhere related with this जो भी लिखा है यहाँ पे, but I want to use this. I want to use this. Okay. Now suppose you have एक minute. Yes. Now listen here carefully. Now अभी जो मैंने आपको सिखाया वो एक्चुअली सीक्वेंस में क्या क्या हो रहा है अभी वो हमको समझना है. सीक्वेंस में क्या क्या हो रहा है वो हमको समझना है. ओके. अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था. ओके. 000 पहले एग्जीक्यूट हुआ, बाद में 002 एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन 02 एग्जीक्यूट होने के बाद वहाँ पे तुरंत मुझे कॉल इंस्ट्रक्शन आया, तो इसलिए मैंने यहाँ से इधर जंप किया. और यहाँ पे जो एड्रेस है, ये जो पहला वाला एड्रेस है, वो आपके आईपी में अपडेट होता है. वो आपके आईपी में अपडेट होता है. बाद में आपने एग्जीक्यूट किया, बाद में रिटर्न आरईटी, यहाँ पे आरईटी था, तो प्रोसेसर को पता चला कि मुझे मेन प्रोग्राम में जाना है, तो आपका आईपी फिर से अपडेट हुआ. वहाँ पे एड्रेस में क्या है, 0004. नाउ आई वांट एवरीवन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन 0004 एंड ये जो एड्रेस लोकेशन था मैंने क्या लिख के दिया था आपको, XX. तो XX और 004 पे फोकस करो. 004 और XX पे फोकस करो. अब देखो क्या होता है एक्चुअली. ये सब कैसे, ये सीक्वेंस क्या है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. द प्रोग्राम काउंटर इज ट्रांसफर्ड विद इन द सेम सेगमेंट. तो इसके लिए मैंने बताया था कि आईपी ही मॉडिफाई होता है, उसमें CS का रोल नहीं होता है. ओके. नाउ हियर देयर इज अ रोल ऑफ स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर का रोल होता है. ओके. स्टैक पॉइंटर का रोल होता है. नाउ व्हेनेवर you have, now I'm writing down here stack pointer. Stack pointer. आपका स्टैक पॉइंटर कहाँ होता है, BIU में होता है कि EU में होता है? सर EU. यस EU में होता है. यस यू आर राइट. अभी यहाँ पे स्टैक पॉइंटर का रोल है, यहाँ पे स्टैक पॉइंटर का रोल है. ओके. सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, क्या रोल है. आप जब मैं फिर से पीछे के स्लाइड पे जा रहा हूँ. आप जब यहाँ पे जंप करते हो ना, XX मेमोरी लोकेशन पे जब जंप करते हो ना, तो आपको ये जो 004 है ना, 0004 जो है ना, ये आपको पुश करना पड़ता है स्टैक पॉइंटर में. तो मैं बोल सकता हूँ आपका स्टैक पॉइंटर अपडेट हो गया है. पहले क्या था, आई डू नॉट नो व्हाट इज देयर इन द पहले क्या था, लेकिन यहाँ पे होगा 00. अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 00. स्टैक पॉइंटर की साइज क्या है मुझे पहले बताओ. 16 बिट सर. यस 16 बिट. ओके. तो एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस व्हाट आई विल डू, यस. नाउ पे अटेंशन. एक्चुअली क्या हो रहा है, आपका जो भी स्टैक पॉइंटर है आपका, यू कैन राइट डाउन अलोंग विथ मी. आपका स्टैक पॉइंटर, अभी देखो मैंने मेन प्रोग्राम से उधर जंप नहीं किया, मैं अभी जंप करने वाला हूँ. क्या क्या हो रहा है वो सुनो, वो सीक्वेंस में बता. सबसे पहले स्टैक पॉइंटर will be decremented. Stack pointer will be decremented by 2. SP minus 2. SP minus 2. Your stack pointer will be decremented by 2. Okay. Your stack pointer will be decremented by 2. So you know that your stack pointer will actually address to the memory address location in the stack segment. Stack pointer will point to the memory address of the stack segment. Yes or no? Yes. So that MA, मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, MA और नीचे लिख रहा हूँ S.
MAS. ओके, सो MAS का लोकेशन आपको कैसे मिलेगा? अभी MAS का लोकेशन कैसे मिलेगा? वही स्टैक सेगमेंट मल्टीप्लाइड बाय 16 to the base 10 यस प्लस plus stack pointer. यस प्लस स्टैक पॉइंटर, प्लस स्टैक पॉइंटर. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टैक पॉइंटर स्टैक सेगमेंट बना रहा हूँ. ओके, यहाँ पे मैं एक स्टैक पॉइंटर बना रहा हूँ. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ. मैं इसको बोल सकता हूँ MAS मैं लिख सकता हूँ MS. अभी देखो आपका स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2. आपका स्टैक पॉइंटर पहले था यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने डिक्रीमेंटेड बाय 2 किया, डिक्रीमेंटेड बाय 2 किया, तो ये 1 और ये फिर से इधर. ओके, सो आई कैन से दिस इज माय SP, this is my SP -1 and this is my SP -2 and this is my SP -2. ओके, अभी क्या हो गया देखो, आपका स्ट्राइक पॉइंटर 2 से डिक्रीमेंट हुआ, 2 से डिक्रीमेंट हुआ. ओके, तो 2 से डिक्रीमेंट होने के बाद ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे है? मेमोरी सॉरी स्टैक सेगमेंट में. और ये MAS का लोकेशन कैसे मिला आपको? ये कैलकुलेशन से 20 बिट ऑफ फिजिकल एड्रेस ऑफ MAS. ओके, तो आपने आपका क्या हुआ? स्टैक पॉइंटर 2 बार डिक्रीमेंट हुआ. आपका स्टैक पॉइंटर अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे होगा 04 स्टोर हो जाएगा. 04 will be stored here. 04 will be stored here. So can I say the instruction pointer IP is pushed into the stack, is pushed into the stack. तो आपका मेमोरी एड्रेस क्या था? वो 0004. तो 04 कैन आई से the lower 8 bit will be stored at SP -2 and the higher 8 bit क्या है? 00. इसका मतलब क्या है? आपका आप जो अभी मेन प्रोग्राम से उधर जंप करने वाले थे ना, तो जंप करने के पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या बताता है? फिर से मैं पीछे जा रहा हूँ. देखो ये देखो, जंप करने के पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे क्या दिखाया था? 0004. लेकिन वो तो मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया ना, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के पहले ये वाली लाइन ये एग्जीक्यूट करने के पहले ही मुझे जंप करना है. तो ये 004 कहाँ पे जाएगा? ये 004 जाएगा आपके स्टैक सेगमेंट में, और स्टैक सेगमेंट पॉइंटेड बाय SP. बट पहले SP 2 बार डिक्रीमेंट होगा. तो 2 बार डिक्रीमेंट होने के बाद लोअर 8 बिट 04 जाएंगे यहाँ पे, और SP -1 में क्या जाएंगे? हायर 8 बिट. तो 0004 एड्रेस लोकेशन इज स्टोर्ड हियर. इट इज स्टोर्ड हियर. ओके, इट इज स्टोर्ड हियर. सो मैं बोल सकता हूँ कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज पुश इनटू द स्टैक. इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज पुश इनटू द स्टैक. ओके, और वो स्टैक का एड्रेस लोकेशन आपका SP बताता है, ओके. सो कैन आई से इनडायरेक्टली योर MAS will have IP. Yes, my MAS will have IP. ओके, और अभी मुझे फिर से मैं पीछे जा रहा हूँ. अभी मुझे यहाँ पे जंप करना है, ये जंप. तो ये जो एड्रेस लोकेशन है ना, अभी फिर से ध्यान रखो, आई विल नॉट टेक मोर देन 5 minutes बट पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब ये जो एड्रेस लोकेशन है ना, वो
either you can mention into the register, ये देखो register, or you can mention in the memory, or you can directly address can be mentioned in the instruction. तो ये जो call instruction है ना, ये call instruction, तो call instruction अगर मैं लिखता हूँ ये address access, तो access can be mentioned in the register, then directly you can say that call and that register ka name, or that access can be mentioned in the memory, then you can write down the call and that memory, or that access can be written in the instruction itself, so it will be like call xx. तो ये जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये सब चीजें होती है। क्या चीजें होती है? आपका एसपी 2 बार डिक्रीमेंट होता है, ये होता है। आपका मेमोरी एड्रेस लोकेशन ऑफ स्टैक सेगमेंट विल बी कैलकुलेट, ऐसा होता है, ये सब होता है। बाद में और क्या होता है? आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो यहाँ पे मैंने बताया था, सपोज 004 वो होने वाला था, लेकिन उसके पहले मुझे जंप किया, तो 004 का क्या होता है? 004 जाता है आपके स्टैक सेगमेंट में, तो 004 यहाँ पे आ जाता है। और क्या होता है? आपका वो जो अभी आपका एक्सेस, हाँ, वो एक्सेस का क्या होता है? आपका एक्सेस अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी आईपी का जो है वो यहाँ पे गया, तो आईपी आपका अभी खाली हो गया, तो आईपी में जाएगा एक्स एक्स, तो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि उसको 0004 मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसको करना है एक्स एक्स पे जो इंस्ट्रक्शन है। तो आप क्या करोगे? आप एक्सेस पे जो इंस्ट्रक्शन है तो ये एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन करोगे, और ये होने के बाद लास्ट में क्या है? रिटर्न। अभी रिटर्न, जब रिटर्न एग्जीक्यूट होगा ना, तब क्या होगा? तब ये जो कुछ मैंने किया है इसका सब रिवर्स हो जाएगा, ये जो मैंने किया है उसका सब रिवर्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो मैंने कुछ किया है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? फिर आपका जो आईपी में एक्सेस था, बाद में नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट वो आप आ जाएंगे। जब रिटर्न जाएगा ना, तो आईपी क्या करेगा? जो आईपी ने जो पहले 0004 जो पुश किया था स्टैक सेगमेंट में, वो अभी वापस ले लेगा। ये कब होगा? लेकिन रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। जब रिटर्न जब करेगा ना, तो वो 0004 रिटर्न करे, ये जाएगा आईपी में। So don't you think that during the return instruction your stack pointer will be incremented by 2? जो पहले डिक्रीमेंटेड बाय 2 था वो इंक्रीमेंटेड बाय 2 होगा। ओके, क्योंकि क्या हो गया? देखो, स्टैक पॉइंटर यहाँ पे था, स्टैक पॉइंटर -2 पे था, बाद में -1 पे आया। जब -1 पे आया तो वो इधर है ना, दैट इज हियर। ओके, सो when you want to return the address, your stack pointer will be incremented by 2. Okay, so the content of the top of stack is transferred to IP. यानी वो कैसे इंक्रीमेंटेड बाय 2 होगा? ये देखो, आपका स्टैक पॉइंटर जब आपने 2 बार डिक्रीमेंट किया तो आपका स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आया, आ गया। ओके, यहाँ पे आने के बाद ये सब आपका हो गया, सब रूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। रिटर्न वाला जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है ना, तब क्या होता है? स्टैक पॉइंटर 2 से इंक्रीमेंट होता है, तो वो कहा जाता है एसपी, जो यहाँ पे बाद में फिर से नीचे आता है। ओके, तो स्टैक पॉइंटर में जाते समय पहले 04 जाता है, बाद में 00 जाता है, लेकिन निकलते समय पहले 04 आता है और बाद में 00 आता है, 04 आता है और बाद में 00 आता है। तो ये जो 0004 है ना, वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जाता है, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जाने के बाद बाकी वाले जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाले, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और बाकी के जो भी कुछ बचे मेन इंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। So that is the meaning of call and return instruction. So if you have understood this, I will request everyone to go with the ebook and try to understand this. So whatever I have explained you, okay. So call memory, call register, या फिर call address itself, okay. इसमें और कुछ concepts है, that thing I will take later on. But today I will be giving you some assignments. Please try to write that, complete that assignment, okay. And these call instruction and return instructions are important, okay. So these are the 2 instructions which are left. उसके बाद वाले जो instructions है, jump,
बिकॉज जंप कंडीशनल भी हो सकता है अनकंडीशनल. ओके, तो उसके लिए हार्डली 5 to 10 minutes will go. And in the next lecture even I will be taking the third experiment. So you have on 2nd October you have holiday, Saturday you have holiday, and Sunday you have holiday. So Friday I do not have, I won't be able to take your lecture because it is a holiday. So tomorrow I will take few time to complete the jump instructions, and after that I will be taking the third experiment, that is to find the largest and the smallest number from the given numbers. Okay, वो होने के बाद फिर you will be utilizing these 3 days holidays for writing down the assignments. Okay, Manish, you can take the attendance. Parmesh madam is there? सर हाँ, सर असाइनमेंट्स ये टाइप चलेगा या फिर रिटन में देना है? आप टाइप करो ना, that will be fine. आप टाइप करो. ओके सर. Okay, हाँ. See, if you are using the cell phones and if you do not have the laptop, okay, you can do. अच्छा एक काम करो, सब लोग है ना हाथ से लिखो, वो अच्छा रहेगा. टाइप मत करो, टाइप में वो टाइम जाता है. आप हाथ से डायग्राम बना सकते हो, जो जो चाहे वो सब कर सकते हो. So all of you can write by your own by your hands, okay, and after you write down, you scan the copy. और आप जब लिखोगे ना तो असाइनमेंट्स आप जैसे जनरल पेजेस पे लिखते हो तो वैसे लिखो, क्योंकि अब जब हम कॉलेज में रिज्यूम करेंगे that time you have to submit the assignment. तो आपको आपने स्टैपल करके असाइनमेंट सबमिट करना है. तो do not write down in the rough notebook, okay, or fair notebook. You can write down in the pages, okay. वो होने के बाद स्कैन करो और फिर अपलोड करो. Is it okay? ओके सर. ओके, अटेंडेंस हो गया क्या परमेश्वरी मैडम? मनीष, अटेंडेंस हो गया? सर परमेश्वरी मैडम नहीं है. नहीं है क्या? फिर ले लो, आप अटेंडेंस ले लो. ओके सर. हाँ. रोल नंबर 1. 1 present. 2 present. 3. Roll number 3. 3 present. 4. 4 present. 5. 5 present. 6.